तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. माय नेम इज यासिर यामीन and I welcome you all in this session. My friends, today is the orientation session for the paper Financial Management. By far, it's one of the most interesting papers that you can think of, relatively with a shorter course, but something that you will be discussing in this paper might be new. You won't have the basics for it from your initial knowledge level papers. So this is by far one of the most interesting and new papers at the same time for you guys. I'll be in this orientation session, I'll be putting up, what this course is all about, how we are going to study, what areas are we going to study, how you should be approaching the exam, what is the exam pattern, and any other questions that you may ask. All right. So this is our agenda for the day. It's all about the financial management course, our structure, and you guys. All right. So most of you already know me, but I'll just start with a brief introduction to my profile. Alhamdulillah, I'm a qualified chartered accountant. Actually, I'm a qualified professional from at least three institutes that you can easily name. So qualified chartered accountant from ICAW, a fellow chartered certified accountant. That means I'm a very old fellow with respect to when I qualified and what stage I'm in right now. I did my chartered management accounting qualification from ICME Pakistan. That's also something within my portfolio. And also, obviously, I hold a bachelor's degree in applied accounting from OBU. Rest of the things I'm not going to disclose right now. But yeah, these 3-4 things you can know. मेरी जो एक्सपर्टीज एरिया है वो एक्सपर्टीज एरिया जनरली मैं बातें करता हूँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के ऊपर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग जैसे पेपर्स के ऊपर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एरियाज के ऊपर. सो दीज आर माय एक्सपर्टीज. And how do you actually define expertise? What's the parameter to define expertise? You see, largely जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो सब कुछ मैंने अपनी रियल लाइफ में किया हुआ होता है. मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ. दैट मेक्स द डिफरेंस. When I talk about, for example, हम लोग IAS 37 के अंदर पढ़ाते हैं restructuring provisions. I have literally worked on restructuring myself. अगर मैं आपको कहीं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम हेल्ड फॉर सेल की बात कर रहे हैं, आई हैव डन दैट. फॉर एग्जाम्पल हम कंसोलिडेशन की बात करें तो आई हैव डन दैट. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स की बात करेंगे तो आई हैव डन दैट इन रियल लाइफ एज वेल. So what sets apart a normal course and my course is maybe the experience, and that is what that is from where I build my expertise upon. मेरी expertise का मतलब ये नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज का मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि यार ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी एक्सपर्टीज है. नो, दीज आर द एरियाज दैट आई वर्क ऑन डे इन डे आउट एवरी डे in my professional career, and therefore I have very sound knowledge of these topics, any topic which I deliver to you guys. So मेरा इसमें exposure बहुत अच्छा. ओवरऑल मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस कह लीजिए तो वो तकरीबन इट्स ग्रेटर देन 12 years नाउ दैट आई हैव बीन टीचिंग ACCA इन पर्टिकुलर. ये मेरा 12 years का एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ ACCA का. आई एम नॉट इंक्लूडिंग दोज years where I used to teach, A levels or O levels or something like that. I don't include those like many other. इसके साथ मिला के तो थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा. लेकिन my professional qualification teaching experience is about 12 years, and it's almost the same, as compared to my professional experience. So currently I'm working as a financial controller in one of the multinational companies. So from there, even I have many examples and many outputs that I can share, you guys with. एक बड़ी अच्छी कहावत है, मेरे किसी अपने टीचर ने, बड़े एक्सपीरियंस टीचर ने मुझे कही थी कि वो ये कही थी कि आप अगर कभी अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान के साथ बैठते हैं ना, या अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान के साथ नॉलेज शेयरिंग करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस डबल हो जाता है. यानी फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं किसी ऐसे इंसान से पढ़ूं या उसके साथ रहूं कि जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरा अपना 10 साल और उसका 20 साल मिला के मेरे पास नॉलेज आ जाती है, यानी मेरे पास 30 साल की नॉलेज आ जाती है. इट्स ऑल अबाउट इफ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट पर्सन और नॉट. So if you study carefully, if you listen carefully, if you learn carefully, ultimately when you go to the market, you are market ready already. बिकॉज आपको वो सारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस के बारे में नॉलेज होती है जो कि एक रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर प्रैक्टिकली आपने अप्लाई करनी होती है.
मैंने कितनी बार स्टूडेंट्स को देखा है, अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी देखा है, बाकी लोगों के स्टूडेंट्स को भी देखा है। एक चीज क्या होती है कि जब आप लोग रियल लाइफ में जब नए नए आते हैं ना, व्हेन यू क्वालिफाई योर एग्जाम्स और यूर फाइनलिस्ट, सो यू समटाइम्स यू गेट अ शॉकर, समटाइम्स यू गेट अ शॉकर। आप बोलते हैं यार मैंने तो ऐसे पढ़ा था, मैंने तो वैसे पढ़ा था, मैंने तो ऐसे पढ़ा था, यार मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं वहां तो ऐसे काम ही नहीं होता, वहां तो रियल लाइफ में तो ऐसा होता ही नहीं है। तो पीपल एक्चुअली कम टू द कंक्लूजन कि यार हमने जो क्लासरूम में पढ़ा होता है और जो हम रियल लाइफ में काम करते हैं उसके बीच में कोई कनेक्ट नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होगी आपके दिमाग में। ऐसा होता क्यों? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो अगर आप बिल्कुल बुकिश फॉर्मेट के अंदर पढ़ेंगे ना, यस आई टोटली एग्री, बुक्स मेक यू स्मार्ट इनफ टू क्वालिफाई एन एग्जाम, बट द रियल क्वेश्चन इज, डू दे मेक यू स्मार्ट इनफ फॉर द मार्केट? Do they make you smart enough for the real life? And that, and most times it's the answer is negative. Yeah. सो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप रियल लाइफ के लिए रेडी हो रहे हो, आपको पिक्चर आती चली जा रही हो, आपके दिमाग में डेवलप होते चला जा रहा हो कि यार जो बात मैं आपको कह रहा हूं वो आपको रियल लाइफ में भी नजर आ रही है और आप अपनी स्टडीज को उसके साथ कनेक्ट कर सकें। एंड हेयर ए there is where I play a very good role. I try to create a connection between what happens in real life and what your subject actually means. Yeah. So you need to have a good connection within these. अगर मैं आपको ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स है जिसके हम ओरिएंटेशन ले रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूं, तो दिस कोर्स इज अ वेरी एक्सक्लूसिव, वेरी सपोर्टिव कोर्स। क्या यू विल गेट कंप्लीट कोर्स कंटेंट इन अ रिकॉर्डिंग फॉर्म। यू विल गेट कंप्लीट कोर्स कंटेंट इन रिकॉर्डिंग फॉर्म, ए टू जी। अच्छा, ए टू जी का मतलब क्या है, कितने एरियाज होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, F9 के पेपर के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, वो कंप्लीट एरिया के ऊपर तो अभी मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात कर ही रहा हूं। But the feature of this course is that you will get complete course content in order to prepare for this paper. Yeah. हम लाइव सेशंस भी कंडक्ट किया करेंगे। अभी क्या उनकी टाइमिंग्स होंगी, किस तरीके से क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोज इन अ वाइल। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं, मैं ऑफर कर रहा हूं, दिस इज नॉट जस्ट अ रिकॉर्डेड कोर्स, इट्स गोइंग टू बी कपल्ड विद लाइव लेक्चर्स, लाइव सेशंस, and whereby we'll be discussing some past papers and we'll be doing exam kit practice, and what we'll be doing query resolution as well. So I'll always be there while you are studying this course. End to end आपका मेरा साथ रहेगा, end to end, until the time you actually go into the exam, आपके पास पूरा का पूरा टाइम रहेगा, पूरा का पूरा टाइम, पूरा का पूरा मेरा साथ रहेगा। या वी आर गोइंग टू डू सम मॉक एग्जाम्स एज वेल, एंड उसकी डीब्रीफ भी आपको मिलेगी। 24/7 व्हाट्सएप कम्युनिकेशन है भाई, 24/7। यानी आपका जब चाहे ना, जब चाहे पूरे दिन में किसी भी वक्त आप चाहें, यू कैन ऑलवेज पुट अ मैसेज टू मी, यू कैन ऑलवेज पुट अ वॉइस नोट टू मी। हाँ, किसी भी टाइम मैसेज करोगे तो रिप्लाई मैं किसी भी टाइम नहीं करूंगा। हाँ, मतलब जाहिर सी बात है, तो मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ के अंदर भी बिजी होता हूँ, इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे काम होते हैं, उसके अंदर अक्सर बिजी भी होता हूँ, लेकिन मैसेज करने में तो कुछ नहीं जाता। यू पुट मी अ मैसेज एंड आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई यू ASAP और ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट। सो ये सारी चीजें हमारे कोर्स के अंदर पार्ट एंड पार्सल होगी। ऑलराइट, नाउ let's talk about the exam itself. You need to learn what is financial management. So financial management का जो subject है ना, it's not like your any traditional courses or traditional subjects whereby आपको rot learning करनी होगी without any purpose. Yeah. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बड़ा ही एक्सक्लूसिव, बड़ा ही स्पेशलाइज्ड कोर्स है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बजाते खुद, आई लिटरली बिलीव इट इज द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। या जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे होते हैं, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक एंगल है अकाउंटेंट की जॉब का। या सो चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली नीड्स टू नो कि भाई अकाउंटिंग होती कैसे है। ये तो आपको पता होना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना जरूरी है कि जब भी कोई कंपनी रन करती है ना, तो कंपनी सिर्फ अकाउंटिंग के ऊपर रन नहीं करती। Each and every day your chief executive officer, your chief operating officer, your business unit head, your sales head, your finance head will be making decisions, and those decisions cannot be made in a language which is not common to decisions. Financial management is the language for decision making.
आपका चाहे सेल्स हेड हो, आपका चाहे प्रोडक्शन हेड हो, चाहे आपका सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो, आपका मैनेजिंग डायरेक्टर हो, जब भी वो कोई फैसला लेने जा रहा होगा तो उस फैसले की फाइनेंशियल इंप्लीकेशन टेस्ट करना जरूरी होगा। और वो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए जो कोर सब्जेक्ट है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज समथिंग दैट technically every company needs financial managers in order to make informed decisions. They need to make informed decisions. Yeah. सो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग बातें भी करते हैं और सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप सुनते रहते हैं कि यार ये जो अकाउंटेंसी प्रोफेशन की जॉब्स है ना, दीज विल बी कट एट लीस्ट बाय 30% इन द नेक्स्ट 3 to 5 years. या विद द एडवेंट ऑफ एआई, विद द एडवेंट ऑफ फास्ट मूविंग एल्गोरिथम्स एंड द टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, एवरीवन थिंक्स कि यार बहुत चांसेस हैं कि अकाउंटेंसी की जॉब्स कट ऑफ हो जाएंगी. You may be able to automate accountancy, but you can never automate decision making. So the more the role of a financial accountant goes down, the higher will be the role of chief accountants in financial decision making. So financial decision making का जो scope है वो आज पहले से ज्यादा है. In my role, जहां पे मैं अभी एज ए फाइनेंशियल कंट्रोलर काम करता हूं, ईच एंड एवरी डे आई नीड टू मेक फाइनेंशियल डिसीजंस. या सो लिटरली स्पीकिंग, मैं जिस मल्टीनेशनल के अंदर काम करता हूं, उस कंपनी के अंदर आई डोंट मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एवरी डे. There are systems available who make financial statements for me, and they are pretty much convenient. Yeah, I don't need to post in double entries every day or make T accounts or ledger accounts every day or trial balances every day. All of that has been automated with the advent of technology. But what I really do is I use the information of the historical financial statements, I use the data of finance and take financial decisions and help my company maximize their profits. So this is the real game. For me, from my point of view, financial management is the real game. Yes, financial reporting is important, but financial management turns around your career. It turns around your career. It enables you to take such decisions, such strategic decisions that will eventually help in shareholders' wealth maximization, profit maximization. Yeah. So I call it's basically where quantitative analysis meets behavioral science. मैं अक्सर लोगों को ना अपनी जिंदगी में बोलता हूं कि यार इमोशनल होकर ना डिसीजंस नहीं लेने चाहिए. कुछ लोग होते हैं ना इमोशनल डिसीजंस लेते हैं. फॉर एग्जांपल, यार अभी अभी इसने मुझसे आज ऐसी बात की है ना, मैं बिल्कुल कुट्टी हो गया, आज के बाद इससे बात नहीं करूंगा. अब वो कितनी प्रैक्टिकल बात, कितनी सच बात क्यों ना बोल रहा हो सामने वाला बंदा, आप बोलते बस भाई इसने मुझसे ऐसी बात की ना, मैं कुट्टी हो गया, आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखूंगा. इमोशंस है. फॉर एग्जाम्पल, अब ये मुझे एक टीचर समझ में आ गया ना, मैं हमेशा इसी टीचर से पढ़ूंगा. भाई भाई नहीं, अच्छा पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहा इररिस्पेक्टिव, लेकिन भाई जानता है ना, वो मुझसे बातचीत अच्छे से करता है, इमोशनल हो गए. तो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि यार इमोशनल डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए, रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए. बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैं जितना भी रैशनल हो जाऊं, मैं जितना भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो जाऊं, अ डिसीजन विल ऑलवेज हैव सम बिहेवियरल और इमोशनल इंपैक्ट इन इट. तो यानी मैं इसको समराइज ऐसे करता हूं, इमोशनल होके डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, लेकिन हर डिसीजन के अंदर इमोशनल इंपैक्ट जरूर होना चाहिए. एंड the behavioral, the emotional impact in your decisions is basically known as behavioral science. So what you do in this paper is that you connect your quantitative analysis, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, you connect that with behavioral science in order to create optimum decisions, बेहतरीन decisions. So you take decisions which are financially viable, that are financially profitable, but they also help your shareholder in the longer run. It also helps the company in the longer run. It also helps the society in the longer run. Yeah. सो अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस. एंड इफ आई समराइज दिस, एक फाइनेंशियल मैनेजर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहा है या कर रहा है, एज अ रोल परफॉर्म कर रहा है, वो 3 की पॉलिसी एक्शंस या पॉलिसी डिसीजंस ले रहा होगा अपने करियर के अंदर. आप इस पूरे पेपर के अंदर 3 तरीके की डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात होगी भाई. एक बात होगी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के ऊपर, वेयर बाय यू विल बी लर्निंग कि जब कंपनी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रही हो, तो किस तरीके से अप्रेज किया जाता है कि ये मिलियन या बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट काम की है या नहीं है.
इट्स ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग. यू नीड टू नो कि इन्वेस्टमेंट्स करते हुए क्या चीज कंसिडर करनी चाहिए, क्या चीज नहीं कंसिडर करनी चाहिए, एंड हाउ टू रियली हैव अ आउटलुक कि यार क्या इस इन्वेस्टमेंट करने का फायदा होगा भी या नहीं होगा. या और यकीन करें ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कोई मामूली डिसीजन मेकिंग नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी मे बी बाइंग अ मशीनरी or maybe opening an office in Italy, or for example maybe acquiring a subsidiary, and you would need to, as a chartered accountant, you would be in a position to you have a call कि is this decision worth it or not. Yeah, you need to make this call that is this decision worth it or not, and how will you do it? By studying this paper. This is the right approach. Make sense? Here as a financial manager you will be making some financing decisions as well. Yeah. So when you work in a real life company, most of the times the final call will be of your CEO. और अक्सर ऐसा हो भी जाता है कि जो कंपनी का सीईओ होता है ना, वो कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट होता है, या वो कोई इंजीनियर होता है, या वो कोई साइंटिस्ट होता है, बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी दैट यूर टॉकिंग, द इंडस्ट्री दैट you are talking about. Now your CEO is bold enough to make decisions. He'll make the call कि यार मैं चाहता हूं कि हमारी एक ब्रांच दुबई के अंदर भी हो, मैं चाहता हूं कि यार हम इस कस्टमर को भी टैप करें, इस इंडस्ट्री को भी टैप करें. बट बिलीव यू मी, एज व्हेन यू आर अ सीएफओ, योर सीईओ कैन नॉट मेक अ डिसीजन बाय योर बैकिंग, बिकॉज यू विल बी द पर्सन हु विल बी अरेंजिंग द फाइनेंस बिहाइंड दैट डिसीजन. अब वो फाइनेंस किधर से आएगा? या तो तुम जाके उधार ले सकते हो, डेट होल्डर से पैसा इकट्ठा कर सकते हो, या तो तुम इक्विटी होल्डर से पैसा इकट्ठा कर सकते हो. जिधर से भी पैसा इकट्ठा करने जाओगे, उस पैसा इकट्ठा करने वाले से जो तुमने पैसा उठाया उसको रिटर्न भी देना पड़ेगा. वो रिटर्न कितना होना चाहिए? क्या वो रिटर्न इतना है या नहीं है? या वो रिटर्न इतना है या नहीं है कि तुम अपनी इन्वेस्टमेंट को वाइबल बना सको? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पैसा उठा लिया लेकिन 24% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है जैसे पाकिस्तान में है. क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने शेयर होल्डर से जाके पैसा उठा लिया लेकिन उसको इतनी इक्विटी या इतना डिविडेंड वो डिमांड कर रहा है कि आपको मजा ही नहीं आ रहा बिजनेस करने के अंदर? All of such type of decisions are to be taken by a chartered accountant who is a financial manager who studies the subject of financial management. या फाइनेंस आएगा किधर से और जाएगा किधर, कौन फैसला करेगा? आप फैसला करेंगे. या फिर डिविडेंड डिसीजंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आपके कोर्स के अंदर ये है कि आपको डिविडेंड डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी. हाउ मच रिटर्न टू बी प्रोवाइडेड एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ रिटर्न डज योर इन्वेस्टर लाइक. याद रखिएगा, देखिए डिविडेंड जब भी कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, पैसा आता तो है लेकिन टैक्स भी कट जाता है. समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल इनकॉर्पोरेशन की बात करें, एप्पल कंपनी की बात करें, तो एप्पल के जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे से प्लीज डू नॉट पे सो मेनी डिविडेंड्स, बिकॉज इफ यू पे डिविडेंड्स, तो फॉर एग्जांपल आपने $100 का डिविडेंड पे किया तो इस पे टैक्स कटेगा $10 का मिसाल के तौर पे, एंड वी विल गेट $90. Now we are shareholders of the company, and Apple, we want you to grow. We want you to grow. And how you can grow? You can spend billions of dollars in research and development and in new type of ventures. Apple car launch kariye, Apple media launch kariye, Apple films launch kariye. Anything which is related to technology and human beings, Apple is supposed to launch. अब आपने शेयर होल्डर को $100 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करिया, $10 उसमें से टैक्स वाले ले गए, $90 उसकी जेब में आया. कल आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दोबारा पैसे चाहिए. जब आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दोबारा पैसे चाहिए तो आप फिर अपने शेयर होल्डर से ये बोलोगे कि यार मुझे $100 की इक्विटी दे दो ताकि मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा सकूं. तो यार नेट तो लॉस रहा ना यार शेयर होल्डर का. आज आपने उसको $90 दिए, $90 दिए, और कल उससे इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में $100 और मांग रहे हो, या कल उससे वैल्यू एडिशन की फॉर्म में $100 और मांग रहे हो. तो आपके तो डिविडेंड डिसीजन मेकिंग गलत हो गई ना. इससे बहुत ज्यादा बेहतर होता कि आप वो डिविडेंड की अमाउंट रिटेन कर लेते, $100 रिटेन करते, टैक्स भी नहीं देना पड़ता, उसी $100 से अपनी फ्यूचर एक्सपेंशन को फाइनेंस कर लेते. इट वुड हैव बीन अ मच क्लियर एंड मच मोर फीजिबल ऑप्शन, मच मोर फीजिबल ऑप्शन. बात समझ में आ रही है आपको? सो डिसीजंस लाइक दीज यू नीड टू टेक, एंड यू विल लर्न अबाउट दीज टाइप ऑफ डिसीजंस इन द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मुझे सब लोग बताइएगा कि अभी तक आप लोगों को कोई सवाल है. आई वुड अप्रिशिएट अगर आपका कोई सवाल आ रहा है इधर तक, एंड इफ यू हैव नो क्वेश्चंस जस्ट राइट यस या ओके, so that I know there are no questions, I can move forward. Yeah, perfect. Yeah, so I'm getting many of the OKs, और फिर DRS का टाइमर खत्म हुआ. I think I should move on.
इफ आई मूव ऑन नाउ, यू वुड नीड टू नो सर कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है। वैसे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स कुछ ऐसा कोर्स बना हुआ है कि इसके अंदर छोटी 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 बहुत सारी चीजें, हाँ, लेकिन अगर मैं आपके पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर कर दूं तो आपके पूरे कोर्स के अंदर मुझे 7 ब्रॉड सेक्शंस नजर आते हैं। मैं अपने पूरे कोर्स को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्स को 7 सेक्शंस में डिवाइड करता हूं, अदर देन दिस ओरिएंटेशन क्लास। पहला सेक्शन जो आपका है, वो पहला सेक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके एनवायरनमेंट के ऊपर। Now, remember, this is a purely theoretical section, purely theoretical section. And sometimes what students do is they technically ignore this section. शुरू में कहते हैं कि यार थ्योरी कौन पढ़ेगा, बाद में कहते हैं थ्योरी पढ़ने का टाइम ही नहीं, पेपर के अंदर चले जाते हैं। आपका एफएम का जो एग्जाम है बेटा, बेटा आपका एफएम का जो एग्जाम है, अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर 45 मार्क्स तक की थ्योरेटिकल कंपोनेंट है। अच्छा, ये सारी थ्योरी F9 के पेपर के अंदर प्रैक्टिकल थ्योरी है, यानी नंबर्स की जो सीक्वेंसिंग है, नंबर से जो समझ में आता है, नंबर्स की जो लॉजिक है, उसके लिमिटेशंस, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, अप टू 45 और 50 मार्क्स आपके पास ये आता है। तो 45 मार्क्स तो आपके थ्योरेटिकल होते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि बाकी 55 मार्क्स न्यूमेरिकल भी है, लेकिन ये 45 मार्क्स थ्योरेटिकल है। तो किसी भी एक पॉइंट इन टाइम पे अगर आप ये कंक्लूड कर लेते हैं कि यार आपने थ्योरी को पढ़नी ही नहीं है, ये जो सर इतना टाइम लगा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट्स एनवायरनमेंट के ऊपर, इसको थ्योरी जान के इसकी तैयारी नहीं करके जानी, तो ऑलमोस्ट यू हैव लिटरली गिव अप ऑन योर एग्जाम। आप कभी फेसबुक के पोस्ट जाके पढ़िए, सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट जाके पढ़िए, ईच एंड एवरी पर्सन वुड बी सेइंग यार थ्योरी नहीं हो पाई, थ्योरी नहीं हो पाई, थ्योरी नहीं हो पाई। यार प्रैक्टिकल तो बड़ा अच्छा किया था, क्योंकि F9 की जो प्रैक्टिकल है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो इतना मजेदार है, इतना मजेदार है, इतना मजेदार है कि दिल चाहता है कि बस ना करते रहो करते रहो करते रहो, दिल चाहता है क्वेश्चंस ही करते रहो, इतना मजा आता है। लेकिन हाइंडसाइट पे याद रखिएगा, थ्योरेटिकल कंपोनेंट एग्जाम का पोर्शन ज्यादा है। तो मैं अपने पूरे कोर्स के अंदर कहीं भी ये नहीं समझता कि यार आप थ्योरेटिकल पोर्शन को गिव अवे करें। इट इज गोइंग टू बी मेजर पार्ट ऑफ योर एग्जाम, सो माय फोकस विल बी इक्विवेलेंट ऑन थ्योरी एज वेल। मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स की थ्योरी हो, चाहे वो बॉन्ड्स की थ्योरी हो, चाहे वो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप की थ्योरी हो, मैं सब पढ़ाऊंगा। हाँ, इतनी लिबर्टी आपके पास है कि आप उसको 1.10 या 1.25x कर करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लिबर्टी आपके पास मेरे कोर्स के अंदर नहीं है कि आप बोले यार जाने दे, देखा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बुक पढ़ने से आपको रोकूंगा तो मैं खुद पढ़ाऊंगा, खुद पढ़ाऊंगा तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्लियर? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट्स एनवायरनमेंट 3 क्लासेस लेनी है आपने इसके अंदर, और हम लोग इसकी एग्जाम किट प्रैक्टिस और पास पेपर प्रैक्टिस अलग से करेंगे, लेकिन 3 क्लासेस आपको लगेंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट्स एनवायरनमेंट के अंदर। इट विल सेट द टोन सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ फाइनेंस इंडस्ट्री एक्चुअली वर्क्स। या देन हमारे पास जो सेकंड टॉपिक होगा, जो सेकंड सेक्शन होगा, दिस इज द सेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, one of the most interesting sections of your of course, most interesting section. Yeah, it will consume, in terms of time, it will consume approximately 20% of your time. Yeah, सो बेसिकली अगर आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सेक्शन अच्छा कर लिया, जिसको अच्छा करना बहुत ज्यादा आसान है, ये बहुत मजेदार टॉपिक है, एनपीवी, आईआरआर, पे बैक, रोस, इन चीजों के ऊपर बात कर रहे होते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे होते हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। इफ यू गेट दिस सेक्शन वेरी राइट, तो 20% ऑफ योर टाइम इज राइटफुली स्पेंट। 20 मार्क्स का ये आपके एग्जाम के अंदर आता है, 20 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आता है, तो 20% टाइम लगाया, 20 मार्क्स डन। और ये ऐसा सवाल होता है कि जिसके अंदर जब आपके 20 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो पीपल यूजुअली गेट अराउंड 17 और 18 बुरे मार्क्स इन इट। बेस्ट यू विल टेक 20 फुल मार्क्स, बट बुरे मार्क्स क्या है कि आप 17 to 18 मार्क्स इसके अंदर लेकर आ रहे होंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शंस ऑफ योर एंटायर कोर्स, इन मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शंस। हम इसके पास पेपर्स भी इतने कर रहे होंगे, इतने कर रहे होंगे, इतने कर रहे होंगे कि दिस इज वन एरिया जो कि आपकी जिसकी पक्की तैयारी हो जाएगी। इसका कहीं मतलब नहीं है कि बाकी सेक्शंस लेस इंपॉर्टेंट है, बट यस, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का जो टॉपिक है ना, यू हैव स्टडीड अबाउट एनपीवी एंड आईआरआरस बिफोर एज वेल। या अब उसकी जाहिर सी बात है एडवांस नॉलेज आपको मिलेगी। F2 के अंदर आपने FMA के पेपर के अंदर
MA के पेपर के अंदर बेसिकली पढ़ा हुआ होता है आपने, बेसिक लेवल के NPV IRR पढ़ा हुआ होता है, बेसिक लेवल का पे बैक वगैरह पढ़ा हुआ होता है। इतना सिंपल तो ऑब्वियसली FM के कोर्स में नहीं आता, इट्स वे मोर एडवांस्ड, बट इसके अंदर मजा जरूर आता है। Technically this is the only area for which you would have some brief background, basic सा brief background आपके पास already होगा, right? Once you are done with investment appraisal, you would go on to sources of finance. Now, sources of finance is again one area which is majorly theoretical. Majorly theoretical. अगेन देखिए, आप मेरी सीक्वेंसिंग देखें ना, तो मैं करी आपके साथ कह रहा हूं कि मैंने आपको होली न्यूमेरिकल, ये ज्यादातर न्यूमेरिकल टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, न्यूमेरिकल टॉपिक कराया, बीच में थ्योरेटिकल टॉपिक कराया। थ्योरेटिकल सेक्शन कराना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको थ्योरी जान के नहीं अच्छा पढ़ेंगे, आप एग्जाम सॉल्व ही नहीं कर सकते। आपको पता है, जब भी F9 का कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है ना, तो F9 का लॉन्ग क्वेश्चन आया ना, फॉर एग्जांपल 20 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आया, अभी हम स्ट्रक्चर के ऊपर नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन आपका 20 मार्क्स का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसमें भी 5-6 मार्क्स की थ्योरी होगी, अप टू 8 मार्क्स थ्योरी आ जाती है, और वो आती ही नहीं टॉपिक्स के अंदर से। तो इन नो वे यू कैन इग्नोर दिस टॉपिक। अच्छा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है भी बड़ा इंटरेस्टिंग भाई। डेट वाले से कैसा पैसा लेते हैं, शेयर होल्डर से पैसे कैसे पकड़ते हैं, IPO कैसे होता है, बुक बिल्डिंग कैसे होती है। हाँ, अभी बहुत सारी चीजें तो आपको पता ही नहीं है, बुक बिल्डिंग क्या चीज होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या चीज होती है, एक कोई स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज हो तो वो कैसे पैसे उठाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको वेबसाइट्स के ऊपर जाके अगर आपको पैसा उठाना हो, वेबसाइट्स के ऊपर जाके अगर आपको पैसा उठाना हो, तो वो कैसे उठाया जाता है। वेंचर कैपिटल्स कौन होते हैं, वेंचर कैपिटल के जरिए कैसे पैसा उठाया जाता है। अभी तो आप सारे लोगों ने बहुत से बहुत देखा ही क्या होगा अपनी जिंदगी में, आपने तो देखा ही शार्क टैंक है भाई। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन शार्क टैंक बाय द वे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन शार्क टैंक, वो इंडिया वाला? हाँ, तो इट्स फैबुलस। एक शार्क टैंक है, एक ड्रैगन्स डेन होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। फिर तो आपने अभी तक तो देखा ही शार्क टैंक है, वो शार्क टैंक वाले जो आप टीवी में देख रहे होते हैं, इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारा पैटर्न ऐसा डिस्कस किया जा रहा होता है, जो कि कभी तो आपके ऊपर से चला जाता है, कभी वो खुद आपको बता देते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज वन टॉपिक जिसको आप क्लोजली रिलेट कर सकते हैं विद शार्क टैंक। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपको ये बताता है हाउ टू रेज मनी फॉर योर बिजनेस। आई मीन, यू माइट हैव अ गुड आइडिया, but that idea needs to be sold, and it needs to be sold in a commercially viable manner to your finance providers, and then only they will give you money. How to do right issues, right issues का फर्क क्या पड़ता है, right issues का इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस के ऊपर, बोनस इश्यूज का इम्पैक्ट क्या होता है, इस्लामिक फाइनेंस कैसे रन करता है। देयर इज ऑलवेज बीन अ डिबेट कि इस्लामिक फाइनेंस इस्लामिक है या नहीं है। नाउ, मैं कोई I'm not a mufti, so to say, but at the very least I can tell you the basics of Islamic finance so that you can come up to a conclusion by yourself कि यार इस्लामिक फाइनेंस कितना इस्लामिक है या नहीं। इवन फॉर नॉन मुस्लिम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड इस्लामिक फाइनेंस, इट इज वन ऑफ दोज एरियाज जो कि मोस्ट ग्रोइंग मार्केट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इट्स अ न्यू मार्केट, सो टू से। So if you're going to Dubai, you're going to Saudi, or coming to Pakistan or any other country like that, Islamic finance is the only type of finance that is available. If you're doing a job in Bahrain or Oman or Dubai or Malaysia, for example, Islamic finance तो आना ही होगा ना। आएगा नहीं तो फिर भैया काम कैसे करोगे, काम कैसे करोगे। वो सारी चीजें आपको किधर मिलेंगी बाबा? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर। या फिर उसके बाद चौथा टॉपिक हमारा होगा बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सीक्वेंसिंग प्रॉपर है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर आपको सिखाया फाइनेंस किधर से रेज होगा, किधर से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का फॉलोअप है। जहां से भी आप फाइनेंस रेज करें, आप इक्विटी फाइनेंस रेज करें, आप डेट फाइनेंस रेज करें, आप प्रेफरेंस फाइनेंस रेज करें, या किसी बैंक से जाके ओवरड्राफ्ट या लोन ले लें, जिससे भी पैसा उठाएंगे ना भैया, जिससे भी पैसा उठाएंगे उसको एक रिटर्न प्रोवाइड करना पड़ेगा। सामने वाले के लिए तो वो रिटर्न है, सामने वाले के लिए तो वो रिटर्न है, आपके लिए एक कॉस्ट है। So it's a cost of raising business finance. Whenever you raise finance, you have to provide them return, and that return becomes your cost. अब ये cost of capital का टॉपिक बहुत समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? बिकॉज वेन एवर यू आर अप्रेजिंग योर इन्वेस्टमेंट्स, यू आर अप्रेजिंग द बिजनेस, आपको ये असेस करना पड़ता है कि यार ये धंधा मेरे बारे में है या नहीं है। अगर आपने अपने शेयर होल्डर्स को ही रिटर्न देना है 20% का, तो एनी धंधा विच प्रोवाइड्स यू 18% रिटर्न, इट्स नॉट इनफ। It's not enough, because you need to provide 20% return to your shareholders. You promised them this much return. This is the return that they require,
because they are investing in your company. Below that they wouldn't have invested. Yeah. सो आपको धंधा असेस करने के अंदर, बिजनेस असेस करने के अंदर कि यार बिजनेस वाइबल है या नहीं, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक आना जरूरी होता है. या सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर ना आप सीखते हैं कि इक्विटी होल्डर को कितना रिटर्न देना पड़ता है, डेट होल्डर को कितना रिटर्न देना पड़ता है, प्रेफरेंस वाले को कितना रिटर्न देना पड़ता है. कुल मिला के बिजनेस का क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है, चाहे डेट और इक्विटी दोनों को मिला के भी पैसा इकट्ठा कर लें तो कितना रिटर्न तो हमें अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना है, कितना धंधे के अंदर पैसा तो बनाना ही बनाना एक्सक्यूज मी पड़ेगा. सही है. So that's important that you understand what is cost of capital. Okay. Now, again, once you have done cost of capital, then we talk about business valuations. आप जिस लेवल के ऊपर अभी है ना, business valuations is one another very interesting topic. How do you value a business? Again, I'll be referring to Shark Tank क्योंकि आपके लिए बड़ा equivalent हो जाता है ना, समझ में आ जाता है आपको Shark Tank. Shark Tank के अंदर whenever you see, you go to you actually see a Shark Tank show and there you see कि यार वो कह रहे होते हैं कि यार मेरे बिजनेस की वैल्यूज 100 करोड़ रुपए है या 50 करोड़ रुपए है या 20 करोड़ रुपए है या $1 मिलियन है या $10 मिलियन है. हाउ डू दे एक्चुअली कम टू द कंक्लूजन कि उनके बिजनेस की $10 मिलियन वैल्यू है? इट्स नॉट लाइक जस्ट आई कैन जस्ट से यार मेरा बिजनेस 100 करोड़ का है. It's not just like that. We are accountants. We talk about rationale. And for that, we need to have certain science, certain numbers, certain qualitative, quantitative analysis based on which we can conclude कि यार बिजनेस की इतनी वैल्यू होनी चाहिए. हाँ, अब बिजनेस की वैल्यू निकालने के बहुत तरीके. एसेट्स की वैल्यू देख लें, नेट एसेट्स की वैल्यू देख लें, बिजनेस की वैल्यू पता लग गई. या इनकम्स की वैल्यू देख लें, बिजनेस की वैल्यू पता लग गई. डिविडेंड्स की वैल्यू देख लें, बिजनेस की वैल्यू पता लग गई. अब ये डिफरेंट दुनिया के अंदर तरीके हैं एक बिजनेस की वैल्यू निकालने के. नए बिजनेस की वैल्यू अलग तरीके से निकाली जाती है, 100 साल पुराने बिजनेस की वैल्यू अलग तरीके से निकाली जाती है. हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंस प्रोवाइडर भी कौन है. तो ये सब कि नए बिजनेस की कैसे वैल्यूएशन करें, पुराने बिजनेस की कैसे वैल्यूएशन करें, एक सिक्योर बिजनेस की कैसे वैल्यूएशन करें, एक रिस्की बिजनेस की कैसे वैल्यूएशन करें, उस सब का इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा 5th टॉपिक बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर. इसकी इंतहा तो AFM, P4 या CFA के अंदर है, लेकिन यहां पे आपको अच्छी this topic sets the tone for valuations so that when you grow up and you go into AFM or opt for CFA, तो आपको यहां से एक्चुअली आपको एक स्टार्ट मिल जाता है कि यार बिजनेस वैल्यूएशंस ऐसे होती हैं. Luckily, business valuations now will consume less percentage of time. So hardly, I think it will consume 10% of your time to preparing this topic. It's relatively an easy topic in your course at the very least. AFM के अंदर, P4 के अंदर तो जाहिर सी बात है टेक्निकल हो जाता है, लेकिन आपके कोर्स के अंदर इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. And then you have one topic which is working capital management, one of the most interesting topics that you can think of. Most interesting topics. Yet, yes, it is a lengthy topic. 20% टाइम लगता है क्योंकि इससे भी ना 20 मार्क का सवाल निकलता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर. MCQs तो भरमार आते हैं, MTQs तो भरमार आते हैं, अभी बात करूंगा पेपर पैटर्न के ऊपर. लेकिन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज वन एरिया वेयर यू विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, not because it is a difficult topic, it is a very easy topic, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन just because it is a lengthier topic, you have to study many areas in working capital management. तो कोई 20% आपका टाइम इसके अंदर भी चला जाएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास एक एरिया होगा रिस्क मैनेजमेंट का. when you're doing dhanda, you are doing business, you are doing karobar, you are always surrounded by certain risks. Whether your product would be sold or not, whether there would be any fire to your inventory, whether there would be a bad debt or something like that. Risks are always there. Now, in this particular course, in this particular section, we are not talking about day-to-day risks, but we are talking about some strategic risks. Yeah. So, for example, एक ऐसी कंपनी जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करती है, तो उसको करेंसी रिस्क कैसे अफेक्ट कर सकता है.
करेंसी रिस्क कैसे इफेक्ट कर सकता है? इफ योर लोकल करेंसी गोज अप और इट गोज डाउन, how will your export and imports be affected, or how a multinational company will be affected? You get to know about in this risk management section. Or maybe what if you're generating finance from debt, or what happens if interest rates go down or interest rates go up? What would happen? Yeah, if your interest rates go up, it will certainly increase your cost of finance, and thereby it will push up the requirement to generate more profit, which will push up your selling prices, which will push up the requirement to manage your cost. So interest rate risk management यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं। एक टॉपिक होता है, एक चीज होती है जिसका नाम होता है हेजिंग। कितने लोगों को इस नाम का मतलब पता है? हेजिंग। हेजिंग, व्हाट डू यू मीन बाय हेजिंग? हेजिंग किस चीज को कहते हैं? नो आइडिया? Hedging is basically a strategy in order to mitigate your risks. Hedging is the strategy whereby you try to create an offsetting position and, turn down your risks, dilute your risks. Hedging ये टॉपिक है, और hedging कहाँ पढ़ेंगे? रिस्क मैनेजमेंट के अंदर. So it's going to be your last topic. You're just going to study that near to your exams. वो टाइम हो चुका होगा कुछ. It's a very interesting topic. Why? Believe you me, it's a very interesting topic. Very interesting. और फिर जो P4 में आपकी हेल्प होगी ना, जब आप F9 के अंदर अच्छा पढ़ेंगे, तो P4 में जो आपको हेल्प होगी वो इंशाल्लाह मेरे लेक्चर्स के थ्रू ही होगी. F9 में ही बेस बना दूंगा मैं आपकी. ठीक है. मैं यहां तक अभी किसी का कोई सवाल है? आई जस्ट डिस्क्लोज्ड दैट देयर आर गोइंग टू बी 7 सेक्शंस, और इन 7 सेक्शंस के ऊपर हमें स्टडी करना होगा. मुझे बताएं यहां तक किसी का कोई सवाल, और अदरवाइज आई कैन मूव ऑन. यू कैन जस्ट राइट ओके. या ऑल राइट. सो आई गेट योर आंसर्स बाय द वे. वेरी गुड. मूविंग ऑन. पेपर का पैटर्न क्या है? जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो उस चीज को तो समझो. आपके पेपर का पैटर्न है क्या? आपके पेपर का पैटर्न जी कुछ यूं है. आपका पेपर कुछ यूं बना हुआ आएगा कि आपके पास 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी, और यहाँ पे हर चीज कंपलसरी होगी. सो देयर आर नो चॉइसेस बाय द वे. या दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर ऑलमोस्ट एवरी पेपर इन स्किल्स लेवल. या सो सेक्शन ए जो है ना, सेक्शन ए के अंदर आएंगे आपके पास 15 एमसीक्यूज वर्थ 2 मार्क्स ईच. सो दिस विल मेक अप 30 मार्क्स, राइट? और ये जो एमसीक्यूज आपके पास आएंगे ना, दिस कैन कम फ्रॉम एनी एरिया ऑफ द सिलेबस. सो एटलीस्ट 30 मार्क्स कैन कम फ्रॉम एनी एरिया ऑफ द सिलेबस. सो यू नीड टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी एरिया. इसके अंदर थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी आते हैं, प्रैक्टिकल एमसीक्यूज भी आते हैं. F9 के अंदर एमसीक्यूज में टाइम ज्यादा नहीं लगता. द गुड पार्ट इज एमसीक्यूज करने में टाइम ज्यादा नहीं लगता, टाइम शॉर्ट होता है. बट इसका एक डाउन साइड ये है कि आपको एक डेप्थ के अंदर जाना पड़ता है. इस कोर्स के अंदर थ्योरी भी कवर करनी पड़ती है, डेप्थ के अंदर जाके ये पेपर पढ़ना पड़ता है, सो दैट यू कैन आंसर गॉड डैम एनी एमसीक्यू दैट योर एग्जामिनर आस्क्स फॉर. क्या ऐसा होता है? फिर उसके बाद आपके पास सेक्शन बी आता है, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी. 3 एमटीक्यूज आते हैं आपके पास. एमटीक्यूज का मतलब बेटा होता है मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस. दिस इज बेसिकली अ शॉर्ट केस स्टडी. या और इस शॉर्ट केस स्टडी के अंदर से, हर केस स्टडी के अंदर से देयर आर 5 एमसीक्यूज दैट यू नीड टू आंसर. तो और जिसके हर एमसीक्यू के 2 मार्क्स होते हैं. या तो दिस मेक्स 10 marks for each MTQ. Now you are going to have 3 short case studies and you are going to have it for 10 marks each. That makes up 30 marks more in your exam. Again, it can come from any area of the syllabus. हाँ, based on past practices, based on इतनी सारी attempts हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये पता होता है कि यार जनरली कौन कौन से MTQs है, किस किस टॉपिक से आते हैं. लेकिन फिर भी you need to cover all of the area of your syllabus so that you can attempt each and any MTQ that comes. And then you come on to section C. Section C के अंदर आपके पास होते हैं 2 CRQs, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, या जिसको लॉन्ग क्वेश्चंस भी कहा जाता है. आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे फॉर 20 मार्क्स ईच. नाउ दीज आर प्रॉपर क्वेश्चंस, दीज आर लॉन्ग क्वेश्चंस. लॉन्ग क्वेश्चंस के लॉन्ग आंसर ही होते हैं. बट हियर योर एग्जामिनर इज वेरी क्लियर फ्रॉम वेयर दीज लॉन्ग क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम.
They can come from investment appraisal, done, dusted. They can come from sources of finance, cost of capital, and working capital management. Now, these four areas can only be tested in your section C. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आना ही आना है, उसके साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सवाल आएगा. इसका मतलब रिस्क मैनेजमेंट नहीं आएगा, बिजनेस वैल्यूएशन नहीं आएगा. जो पहला आपका एरिया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट्स एनवायरनमेंट, उसके अंदर से नहीं आएगा लॉन्ग क्वेश्चन. तो इसका मतलब यहां से तो हमारे 40 मार्क्स निकलेंगे. एंड बिलीव यू मी, अक्सर स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ एरिया होता है लॉन्ग क्वेश्चंस. But ultimately, these long questions can only give you a maximum of 40 marks. We are studying so that we can have 100 marks, not 40 marks. Yeah. So obvious बात है, हमें पूरा एरिया ऑफ द सिलेबस देखना पड़ता है ताकि हम लोग पूरे एरिया ऑफ द सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर कर सकें. But yes, this is going to be for 40 marks, and this is why you'll have the paper of 100 marks in total. Yeah, 100 marks in total. All right. Any questions till now? Or should I move on? पेपर पैटर्न समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड, पेपर पैटर्न समझ में आ गया. लेट्स मूव ऑन. पेपर पैटर्न समझ में आया है ना? तो स्टडी पैटर्न तो समझो. एक कॉमन क्वेश्चन अभी आप पूछने ही वाले थे, सर ये सब तो सही है, 7 सेक्शंस है, 7 सेक्शंस को हमने कवर करना है. आपके पैटर्न के लिहाज से 7 सेक्शंस है. 7 सेक्शंस के अंदर एग्जामिनेबिलिटी ऐसी होगी, सर हम पढ़ेंगे कैसे? हमारा पढ़ने का अंदाज होगा मिक्स. You are going to have recordings of complete course content, which is approximately for 50 plus hours. So I just told you FM का कोर्स ना कोई खास बहुत ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है. So people who are willing to take other papers, for example कोई FR का पेपर दे रहा है, तो FR के पेपर के साथ FM का पेपर लिया जा सकता है if you are a full time student, क्योंकि कोर्स छोटा है. हाँ भाई, कोर्स छोटा है, कोर्स हल्का नहीं है, लेकिन कोर्स छोटा है. If you are going giving tax for example in coming attempt, you can take FM. इफ यू आर गिविंग डबल ए, आप ले ले भाई इसके साथ एफएम, जरूर लेना चाहिए भाई आपको. दिस विल हेल्प यू अलॉट. इन जस्ट 50 आवर्स टेक्निकली योर कंटेंट इज कंप्लीट, कंटेंट पूरा हो जाता है. सही है ना? यू आर गोइंग टू हैव दिस. फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी करेंगे, एग्जाम किट भी करेंगे. ऑल ऑफ दिस इज रिकॉर्डेड. बट आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू लीव यू देयर. हमारे साथ साथ लाइव सेशंस भी होंगे भाई. वीकली लाइव सेशंस होंगे हमारे. And in those weekly live sessions, I'll be sharing a detailed study planner with you guys. और उस स्टडी प्लानर के मुताबिक आपके लाइव सेशंस हुआ करेंगे. उन लाइव सेशंस के अंदर हम लोग पास पेपर्स किया करेंगे. उसके अंदर हम लोग स्प्रेडशीट्स की प्रैक्टिस किया करेंगे. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, खास तौर पे फॉर द कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, यू नीड टू हैव गुड प्रैक्टिस ऑफ स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट की प्रैक्टिस नहीं होगी तो ना तो हम लोग को शॉर्टकट्स पता लगेंगे जो कि स्प्रेडशीट के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं, ना तो हम लोग की तैयारी अच्छी हो पाएगी, ना तुम लोग कुछ और प्रिपेयर कर पाओगे. तो स्प्रेडशीट की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. एंड देन योर क्वेरी रेजोल्यूशन विल आल्सो बी हैंडल्ड लाइव. या सो इट्स more time you will be spending at your home studying through recorded lectures, but some of the time you need to get engaged with me. एंगेजमेंट का फायदा मॉक होता रहेगा. सो एंगेजमेंट का फायदा मोमेंटम बना रहेगा. एंगेजमेंट का फायदा क्वेरी रेजोल्यूशन होती रहेगी. एंगेजमेंट का फायदा स्प्रेडशीट प्रैक्टिस होती रहेगी, पास पेपर्स होते रहेंगे. सो दैट्स द होल आइडिया. या कब होगा लाइव सेशन, आई विल टेल यू दैट ऑब्वियसली, बट या वी आर गोइंग टू हैव लाइव सेशंस एज वेल. ऑलराइट. So with this, now the important part is that how do you begin? Yeah, it's a simple 3-step approach. Most of you guys already know about it. पहले तो आपने enrollment form भरना है. Enrollment form must be accurate. If I'm not, if my team is does not have right enrollment form, most likely they won't be able to help you with the registration process. So it's a fairly convenient enrollment form that I share with any person. What you need to do is you just need to put me a WhatsApp and I'll be sharing that form with you. Yeah. Then you pay your fee. Yeah. For fees related details, yeah, you just contact me on my given particulars. I won't be discussing that right now in the recorded lecture, but yes, you contact me on my number. You contact me on my number and I'll be sharing the fee structure with you. It's actually, it's part of the enrollment process in enrollment form. Yeah. So it's all of these two things will be given at once. And then you'll be in the study group as well. Yeah. So you'll be in the study group. Yeah.
And in that study group, I'll be updating about the live sessions, I'll be updating about all the content, I'll be updating about the exam strategy and everything. So you need to be in the WhatsApp group. And bear in mind, only registered students will be there in the WhatsApp group. Those who are not registered won't be able to obviously get the content, and they won't be able, they won't be a part of our whole community. Yeah, so you need to get registered ASAP. All right. So this is the strategy that I'm preparing. And from my side, this is it. From my side, this is it. Now I'm willing to take your questions. Just let me know if there are any questions. नहीं होंगे तो फिर हम ओके लिख दीजिए ताकि मैं कुछ और बात कर सकूं. Okay, so very important question, Omar ka. Sir, is book reading important? Not all of the book. Yeah, I'll be providing you the study text as well. There is some portion at the very least that I would say that in order to reinforce the concepts that I've already given you, I've already discussed in my lectures, it's better that you read it again from the book as well, so that आपका confidence level भी high हो और nitty gritty से आप aware हो जाए. सही है? तो मेरे notes आपको मिलेंगे. I'll be providing the notes. Book, मेरे notes, everything will be provided to you. Everything will be provided to you. और बुक कुछ एरियाज में आपको बताऊंगा, कुछ पेजेस आपको बताऊंगा, बस वो पढ़ लीजिएगा. अच्छा, मॉस का एक सवाल है, सर एफ एम के साथ कौन से पेपर लिया जा सकता है? देखो, मैं तो बोलूंगा एफ आर ही लो. सही है ना, फॉर ऑब्वियस रीजंस. एफ आर का फायदा क्या है? एफ आर और एफ एम का ना कनेक्शन अच्छा बनता है. एक जगह आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, एक जगह आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यूज करते हुए डिसीजन ले रहे होते हैं. तो आई वुड से एफ आर एंड एफ एम. इफ यू आर डन विद एफ आर, यू कैन गो विद डबल ए और मे बी टी एक्स. तो कोई ऐसा पेपर उठा सकते हैं साथ में. अगर ये भी एक, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे बाकी स्किल्स के पेपर हो चुके, तो एफएम के साथ फॉर एग्जांपल यू कैन टेक एसबीआर व्हिच इज द नेक्स्ट पेपर टू कम, सो यू कैन मैनेज दिस वे एज वेल. ये भी हो सकता है. और बताएं. अच्छा, दोज ऑफ यू हु डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, बाय द वे, व्हाई डोंट यू हैव एनी क्वेश्चंस? और इसके अलावा प्लीज जस्ट राइट ओके, सो दैट आई कैन आई नो दैट यू आर गुड विद इट. यार किट काम एक ही, कैप्लिन भी ले लोगे ना, बस काफी है. कैप्लिन इज मोर देन इनफ. And just stay with me, okay? So is everyone good? Yeah. So basically this is our orientation session, और यहाँ पे हमारी बात खत्म होती है. Take care.